السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر اگر آپ روزانہ 21 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ آپ کی زندگی کے تمام مشکلات اس ایک وظیفے کو پڑھنے سے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ جو بھی اس وظیفے کو اللہ پاک کے حکم سے اس عمل کو کرتا ہے اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، گھر میں اس کے سکون آ جاتا ہے، خوشیاں آ جاتی ہیں، اس کی تقدیر فوراً بدل جاتی ہے، قسمت کے بند پڑے دروازے فوری طور پر ایک دم سے کھل جاتے ہیں، اور خدا کی قسم اس بندے کی زندگی میں رزق ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے اس نے گمان تک نہ کیا ہو، جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ پیسہ ایسی جگہ سے اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مراد یہ ایک عمل اس کی پوری کر دیتا ہے۔ ساری زندگی میں کیے ہوئے وظیفے ایک طرف اور آج کا میرا بتلایا ہوا سورہ کوثر کا عمل ایک طرف۔ آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے جو پہلی شرط ہے یاد ضرور رکھیں، بہت ہی توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سنیں۔ عمل کی سب سے پہلی شرط جو ہے وہ آپ کو سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں پر آپ کے وظیفے میں کوئی دخل کرنے والا نہ ہو۔ جب تک آپ اس عمل کو کریں اسی ایک جگہ پر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بالکل فری ٹائم میں، یعنی بالکل جب آپ ہر ایک کام سے مصروف ہو جائیں، ہر ایک کام سے آپ جب فارغ ہو جائیں، اس کے بعد میں آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ پر آپ کو بیٹھ جانا ہے اس عمل کو پڑھنے کے لیے کہ جب تک عمل پڑھیں کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی بھی آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کے وظیفے میں کوئی بھی دخل اندازی نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سورہ کوثر کا عمل ہے اور اس میں 2-3 مزید آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ وضع ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے جو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے بہت ہی آرام کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ عمل کے درمیان میں آپ نے وقفہ نہیں لینا، عمل کے درمیان میں آپ نے بریک بالکل بھی نہیں لینا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کر لینا ہے۔ جو کہ میں آپ کو ہر ایک ویڈیو میں بولتی ہوں کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے 5 وقت کا نمازی ہونا ہوگا۔ مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ جب تک آپ 5 وقت کے نمازی نہیں ہوتے ہیں، جب تک آپ تہجد نہیں پڑھتے ہیں، تب تک کوئی بھی وظیفہ کام میں نہیں آتا ہے۔ تو میں ان کی اس بات سے بالکل سہمت ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے پرہیزگار بننا ہوگا نماز کا۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیے، تہجد کی بھی نماز پڑھیے اور آپ وظیفے کو بھی کیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جس بھی حاجت کے لیے جو بھی وظیفہ کریں گے آپ کا وہ وظیفہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ باوضو آپ نے جا نماز پر بیٹھ جانا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس طرح سے اس عمل کو پڑھنے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے آپ نے، اور فوراً آپ نے اس عمل میں میرے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، انا اعطیناک الکوثر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی زیادہ توجہ چاہتی ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی ہاتھ جوڑ کر توجہ کے ساتھ اس عمل کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اس عمل کو، یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وہ عمل آج تمہیں میں دے کر جاؤں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ جو بھی دعائیں مانگیں گے، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی ہر طرف سے آپ کی پوری ہوگی۔ تو ناظرین، آزمائش میں گھرے ہوئے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے، انشاءاللہ فوری طور پر تمام پریشانیوں سے آج آپ نکل جائیں گے۔
तमाम आजमाइश से आप निकल जाएंगे। बस आपने इस अमल को बताए हुए तरीके से किसी भी दिन किसी भी वक्त कोशिश करना कि वीडियो जैसी ही देख लें तो एक मर्तबा उसी वक्त इस अमल को पढ़ लें। वीडियो देखने के फौरन बाद अगर कोई मजबूरी ना हो तो बाकी जब चाहो आप लोग पढ़ सकते हैं, आप जैसा बेहतर समझे। नाज़रीन, आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अमल को शुरू करना है और पहला वजीफा इस अमल में आपने सबसे पहले सूरह कौसर को शामिल कर लेना है और आपने इस अमल में सबसे पहले 7 मरतबा यानी कि 7 टाइम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 7 बार आपने सूरह कौसर को पढ़ लेना है। जब 7 मरतबा 7 टाइम सूरह कौसर आप पढ़ लें तो उसी वक्त आपने इस अमल में सेकंड नंबर का एक और वजीफा ऐड कर लेना है, यानी कि आपने दूसरे नंबर का इसमें वजीफा शामिल कर लेना है। जब 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें तो फौरी तौर पर आपने इस अमल में सेकंड नंबर पर जो कमाल का वजीफा शामिल करना है, बहुत ही मुजर्रब तरीन वजीफा है, बहुत ही पावरफुल वजीफा है, दौलत का बादशाह वजीफा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अमल शुरू किया। 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ ली तो अब आपने इसमें एक और वजीफा ऐड कर लेना है और यह पूरा का पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर करना है। यानी कि जब एक बार इस अमल को पढ़ने आप बैठ जाएं, किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भी जगह पर एक बार बैठ गए तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो आपने खड़े नहीं होना है। एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर इस अमल को पढ़ना। आखिर में आपने तमाम आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलें हैं, अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। अब नाजरीन, आपने 7 बार सूरह कौसर पढ़ ली है तो अब 7 बार सूरह कौसर जो पढ़ी है आपने पहली बार, तो इसके बाद आपको जो वजीफा पढ़ना है सूरह कौसर 7 बार पढ़ने के फौरन बाद नाजरीन आपने या रहमानु या रहमानु या रहमानु आपने या रहमानु का वजीफा इस अमल में शामिल कर देना है। 7 बार आपने या रहमानु का वजीफा पढ़ना है। 7 मरतबा या रहमानु आप जब इस वजीफे में ऐड कर लें, जब आपने या रहमानु का वजीफा पढ़ा है तो उसके बाद फौरन आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 7 बार सूरह कौसर सेकंड टाइम पढ़ लेनी है। दोबारा से इस तरह आपकी टोटल 14 मरतबा सूरह कौसर हो जाएगी। जब सेकंड टाइम 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें तो अब आपने जो वजीफा इस अमल में शामिल करना है, इस पूरे अमल को बतलाने में समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे, लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो मुश्किल से आपका 1 से 1.5-2 मिनट ही लगेगा। आपने सेकंड टाइम 7 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी कि सूरह कौसर पढ़ ली तो अब आपने एक जो वजीफा शामिल करना है इस अमल में कमाल का वजीफा है, पावरफुल वजीफा है, दौलत का बादशाह वजीफा है, दौलत से घर को भर देने वाला। आज आपके सामने ये वजीफा हाजिर है। साथियों, भाइयों, बहनों, ये वजीफा है या गनियू या गनियू या गनियू। आपने अपने अंदाज में या गनियों का ये वजीफा इस अमल में सिर्फ और सिर्फ इस वजीफे को या गनियों का यह वजीफा आपने 7 बार यानी 7 टाइम आखिर में आपने क्या करना है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और 1 मरतबा आपने पहले सूरह कौसर पढ़ा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, इस तरह से 7 मरतबा आपने सूरह कौसर को इस अमल में शामिल करके इस तरह आपकी टोटल 21 मरतबा सूरह कौसर इस अमल में आप लोग पढ़ लेंगे। अमल के आखिर में आपको क्या करना है यह भी समझ लें। और यह एक इजाज़त शुदा अमल है। अमल की इजाज़त चाहते हैं तो अपना प्यारा सा नाम कमेंट्स में लिख दे ताकि फौरी तौर पर आपको इजाज़त मिल जाए। आखिर में 7 मरतबा आपने फिर से सूरह कौसर को पढ़ लिया, यानी कि मैं आपको फिर से एक बार तफसीर के साथ बता दूं कि आपने क्या करना है। आपने बावजू जानमाज पर एक जगह पर, यानी कि जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहां पर बैठ जाना है। उसके बाद में आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह कौसर को 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर
फसल्ली लिरब्बिक वनहर इन्ना शानिअक हुवल अबतर, आपने 7 मरतबा इसको पढ़ लेना है। उसके बाद में आपने तुरंत यानी फौरन बाद आपने सेकंड नंबर का वजीफा इसमें ऐड करना है, यानी कि या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु, आपने 7 मरतबा पढ़ना है। या रहमानु 7 मरतबा पढ़ने के बाद में आपने फिर से 7 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतौइनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपने 7 मरतबा फिर से इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद में आपने फिर से इसमें या गनियों का ये पावरफुल वजीफा ऐड कर लेना है, या गनियों या गनियों या गनियों या गनियों या गनियों या गनियों या गनियों, इस तरह से आपने 7 टाइम यानी 7 मरतबा आपने या गनियों का अमल भी ऐड कर लेना है। और उसके बाद में आखिर में आपने फिर से सूरह कौसर को पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ में। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, एक बात और मैं आपको बता दूं, आपने बहुत ही तवज्जो के साथ सुनना है। आप जब वजीफे को स्टार्ट करें पढ़ना, यानी कि जब आप वजीफे को शुरू करते हैं पढ़ना, तब आपने दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़नी है। दुरूद पाक आपको जो भी याद है आप वो पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं, और बेहतर यही है, अफजल यही है कि आप दुरूद इब्राहिम पढ़ें जो नमाज वाला होता है। तो आप शुरू दुरूद पाक से करेंगे, और जब आपका वजीफा ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है, तब आप फिर से दुरूद पाक को पढ़ना है। दुरूद पाक आप 3 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने इस अमल को कंप्लीट कर लेना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी है कि आपने जिस भी हाजत के लिए इस वजीफे को किया है, अल्लाह पाक आपकी उस हाजत को कबूल अता फरमा ले। फिर उसके बाद में आपने ये अमल को कंप्लीट कर लिया है। आप सभी नाज़रीन हजरात, आप सब जब ये पूरा वीडियो देख लें तो आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आमीन ज़रूर लिखें, और अल्लाह के 99 नामों में से किसी एक नाम को ज़रूर लिखें। आप सब इजाज़त के लिए अपना नाम भी लिख लें। अमल की इजाज़त चाहते हैं तो अपना प्यारा सा नाम कमेंट्स में लिख दें, ताकि फौरी तौर पर आपको इजाज़त मिल जाए। आखिर में आपने 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लिया, तो 1 मरतबा यानी कि जो मैंने आपको फिर से बताया है, 1 मरतबा, 3 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा आपने दुरूद पाक यानी दुरूद शरीफ को लाजमी पढ़ना है। कोई भी अमल आप शुरू करें तो दुरूद पाक नहीं पढ़ना, आखिर में पढ़ना है। यानी कि आपने अगर दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो आपका वो अमल कंप्लीट नहीं होगा। तो आखिर में आपने कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है जो आपको याद हो, और याद रखें आपको वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था, वही दुरूद पाक आपने आखिर में भी पढ़ना है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि आप वजीफे को करते हैं तो आप सबसे पहले नमाज के परहेजगार बने, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ें। उसके बाद में ही आप कोई भी वजीफा करते हैं, अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी हर एक जायज़ हाजत ज़रूर पूरी होगी। कोई भी परेशानी हो, रुपए पैसे की तंगी हो, आपकी हर एक हाजत ज़रूर पूरी होगी। आखिर में आपने इस वीडियो को यहाँ तक आपने सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों के साथ में, अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ में, जिससे कि उन्हें भी इस वजीफे के बारे में पता चले। अल्लाह पाक से खूब सारी दुआएं मांगते मांगते आपने इस वजीफे को कंप्लीट कर लेना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए वजीफे के साथ में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।